Hello everyone, welcome back to Codalgo. So today we are going to look at a problem in which it is called as move all negative numbers to beginning and positive to end. So let's look at the problem statement first. So you're given an array consisting of n integers and you need to rearrange the array elements such that all negative numbers appear before all positive numbers. So basically, the problem says that we are given an array consisting of certain integers, and they can be positive, they can be negative, they can be zero as well, I guess. Yeah, they can be zero. It can be zero as well. So we are given an array consisting of all positive, positive numbers and negative numbers, and even zero. And we need to rearrange the array elements such that all negative numbers appear before all positive numbers. Basically, we have to do shifting in such a manner कि negative numbers पहले आए and then after that positive numbers आए हमारे. So it is asking us to solve this in order of one auxiliary space, and order of elements is not important. That means आप उनको shift swapping anything you want to do. Relative order है amongst the positive numbers and the negative numbers is not important here. So example, it's given. So let the array be, okay, let's take an array. Let's take the array 1, 2, -3, 4, -4 and -5. So the given array is 1, 2, -3, 4, -4 and 5. Was this the array? 1, 2, -3, 4, -4 and -5. So this is the given array. So this is an array of how many elements? 6 elements, as I can see. Yes. So this is the array which is given to us. After solving this, we want to solution array, I'll say. We want to convert it into something like this. We have to move negative numbers to the beginning, right? तो अगर हम sorting या sorry हम इस तरीके से करें, so negative numbers come at front and positives come later. See, this thing or this approach or this answer is the correct answer, is one of the possible correct answers. Why am I saying one of the possible correct answers? Because it was mentioned that order is not important. This is a very important point, that order is not at all important. Order is not at all important. So that means if this is a correct answer, then even this is a correct answer. Alright, so these are possible correct answers for the given problem. Alright, I hope it is clear with the help of sample test case. Next thing that we have to do is for each test case. Okay, so in the given problem statement हमें एक vector दे रखा है nums करके, and हमें उसमें ही सारे shift करके, या maybe you can form a new array but we'll return the same array. We have to do that, and हमें auxiliary space नहीं use करना है. So we don't have to use any extra space. So how can we do that? Let's look at an approach. So if let's look at a basic approach, brute force जो हमारे दिमाग में आएगा वो क्या आ सकता है? If at all we can use an auxiliary space. मान लो हमने एक 6 size का array बनाया, 6 size का array बनाया, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. या सो हमने बनाया, हमने क्या करा, हमने पहले सारे पूरा अपना array traverse किया, एंड wherever we encounter a negative element, हमने उस negative element को इस array में डाल दिया, like this. Okay, then we encountered -4, then we encountered -5. ये तो हो गया, हमने पहले सारे negative numbers fill कर दिए. Then we'll traverse the array again, and then we'll try to find that if a number is positive, we'll add it in our new array. Alright, so this is about the approach 1. इसमें we are using an array. This is the extra array, and first हम पूरा array traverse करके, main array या vector traverse करके, we are finding all the negative elements and putting it in our extra array, and then we are finding all the positive elements and we are putting it in our extra array. So इसमें जो time complexity आएगा, time complexity will be order of n only. We are traversing the array twice, but एक बारी में तो single loop ही काम कर रहा है, right? So it will be order of n only, and here space complexity is gonna be how much?
order of n. Again, why? Because we are using an extra array here. So ये approach is fine, we can use it. In that approach we have to traverse the array twice. ठीक है, पहले सारे नेगेटिव नंबर्स इनकाउंटर जहाँ पे भी हम करेंगे उनको हम अपने एक्स्ट्रा array में डालेंगे, and in the second for loop we'll add all the positive numbers in our extra array, so giving us an order of n time and space complexity. But like can we make it better? I mean they asked us कि हम इसका space complexity order 1 कर सकते हैं कि नहीं. So let's see if that's possible. We look at the second approach now. Alright, let's move on to second approach. This approach we are aiming for same time complexity order of n, but space complexity is order of 1. So let's see how we can do this. I'll erase this for now, this portion. Also this point order is not important, ये आप ध्यान रखना. ठीक है, इसको फॉर नाउ मैं इरेज कर देती हूँ. ऑलराइट, सो या योर n इज इक्वल्स टू 6. तो हमें जो करंट एरे है वो गिवन है ऐसा कुछ. मैं इधर और बना लेती हूँ बिकॉज आई हैव टू डू प्लेंटी ऑफ थिंग्स ओवर इट, कटिंग वगैरह होगा. या सो दिस इज़ माई करंट एरे. ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि पॉजिटिव नंबर्स को पीछे लेके जाना है, नेगेटिव नंबर्स को आगे लाना है. तो बेसिकली दो तरह के डिवीजन होते हैं कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा एरे है, इस साइड मुझे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स रखने हैं एंड इस साइड मुझे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स रखने हैं. ऑलराइट, हमने अर्लियर क्या किया था, हमने एक एम्प्टी एरे लिया था. एम्प्टी एरे ऐसे कुछ एम्प्टी एरे लिया था एंड व्हेनेवर वी फाउंड अ नेगेटिव नंबर हम उसको यहाँ पुट कर देते थे एंड ऐसे हम करते रहते थे. यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते थे एंड देन वी ट्रेवर्स्ड अगेन एंड देन यहाँ पे हमने सारे पॉजिटिव नंबर्स फिल कर दिए थे. ऑलराइट, परफेक्ट. हम क्या करते हैं, हम इस एरे को जब ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, हम मान लेते हैं कि ये एरे हमारा डिवाइडेड है. जैसे मैंने यहाँ बोला ना नेगेटिव और पॉजिटिव में, तो ये हमारा जो एरे है नेगेटिव और पॉजिटिव में डिवाइडेड है. लेट्स से इधर, ठीक है, दिस साइड होल्ड्स ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड दिस साइड होल्ड्स ऑल द पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है, इनिशियली क्योंकि ये डिवाइडेड है तो हमने ऐसे कुछ तरीके से लिख दिया. इनिशियली सिंस यहाँ पे हमने कुछ सॉर्टिंग नहीं करी है उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव में, सो वी आर कंसिडरिंग दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव साइड. अब हमें एक एक करके नेगेटिव इधर डालना है, अपना पॉजिटिव इधर ही रखना है. ठीक है, तो मैंने मान लिया, मैं अब देखो नेगेटिव साइड पे ट्रेवर्स करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा तो लेट्स कॉल इट आई. पॉजिटिव साइड पे ट्रेवर्स करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, लेट्स कॉल इट जे. फाइन. तो हम क्या करते हैं, अपना एक आई वेरिएबल उसको इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से. मैं इंडिसेस लिख देती हूँ यहाँ पे 0 1 2 3 4 5. ऑलराइट, मेरा आई जो है वो -1 से इनिशियलाइज्ड है, मेरा जे इज इनिशियलाइज्ड विद 0. फाइन, मेरा जे इज इनिशियलाइज्ड विद 0, यानी मेरा आई इधर पड़ा है. अगर मैं इसको एक स्पेस बनाऊँ, आई इधर पड़ा है, मेरा जे इधर पड़ा है. फाइन. अब मैं क्या कर रही हूँ, वाइल आई ट्रेवर्स दिस रेस्ट ऑफ दिस साइड, जब मैं इस पूरे को ट्रेवर्स करूँगी, आई ट्राई टू डिवाइड, यानी कि मैं उसको इस साइड से इस साइड पर प्लेस करने की कोशिश करूँ. अगैन आई एम सेइंग, मैंने क्या बोला कि हमको डिवाइड करना आ रहे को इस तरीके से कि इस साइड नेगेटिव जाए, इस साइड पॉजिटिव जाए. तो आई कंसिडर्ड कि डिवीजन मेरा यहाँ से हो रहा है. इधर वी हैव ऑल द नेगेटिव नंबर्स अभी तक के एंड इधर वी हैव ऑल द पॉजिटिव नंबर्स अभी तक के. फाइन. तो हमारा आई मैंने -1 से इनिशियलाइज कर दिया, जी मेरा 0 से, क्योंकि आई देखो कुछ भी नेगेटिव नंबर इधर नहीं है तो आई एम्प्टी होगा ना, हमने उसको -1 से इनिशियलाइज कर दिया. ऑलराइट, अब व्हाट वील डू, हमें यहाँ पे पॉजिटिव नंबर मिल रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली जे को ++ कर देंगे एंड ऑब्वियसली लूप जो है जे पे लगेगा, जे <n तक लूप लगेगा. फाइन, एक वाइल लूप. ठीक है, अगेन मुझे एक पॉजिटिव नंबर मिला, ये भी करेक्ट पोजीशन पे है, हम आगे बढ़ते हैं. अब मुझे एक नेगेटिव नंबर मिल गया. नाउ व्हाट, मुझे एक नेगेटिव नंबर मिल गया तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ कि जो मेरा नेगेटिव पोर्शन है मैं इसमें उसको डाल सकती हूँ. तो व्हाट कैन आई डू इज़ कि मुझे पता है कि ये जितना पोर्शन है ये नेगेटिव है एंड इस पोर्शन के जस्ट नेक्स्ट वाला एलिमेंट विच इज़ दिस वन,
ये क्या ही होगा, ये पॉजिटिव ही होगा. लाइक इफ आई एम डिवाइडिंग द एरे इन सच वेज एंड आई नो कि इतना पोर्शन नेगेटिव नंबर्स से भरा हुआ है, देन द एलिमेंट जस्ट नेक्स्ट टू इट ये क्या ही होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा. तो अगर मैं इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से स्वैप कर दूं तो कुछ दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी. मान लो मैं इस नंबर को इधर पड़े हुए किसी नंबर से स्वैप कर रही हूँ, तो क्या दिक्कत आएगी? नहीं, मेरा ये नंबर तो अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही रहा, अभी भी इट्स स्टिल ऑन द पॉजिटिव साइड, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स. तो व्हाट आई विल डू इज, if I'm encountering a negative number, I'll first do I plus plus, that is मेरा I इधर आएगा, and then I'll do swapping between this array of I and array of J. So after I'll do swapping, what will happen? This 1 is going to become 3 and this, sorry, minus 3, and this minus 3 is going to become 1. So how will my array look like? Where can I write it? I can write it here. How will my array look like? It will look like something this: minus 3, 2, 1, 4, minus 4, minus 5. ठीक है, ये मेरा array ऐसे लगेगा. अब सिंस मैंने i प्लस मेरा i इधर आ गया, यानी डिविजन कैसे हो गया? ये डिविजन हो गया नया कि अभी तक के मेरे नेगेटिव नंबर्स कहाँ हैं? इधर है, और अभी तक के पॉजिटिव इधर. अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो मेरे नेगेटिव नंबर्स अभी तक इधर हैं एंड मेरे पॉजिटिव नंबर्स सारे इधर हैं. करेक्ट? ठीक है. अब मेरा j अगेन प्लस प्लस हो जाएगा. मेरा j इधर है, मेरा i किधर पड़ा है? यहाँ पड़ा है मेरा i. फाइन, 0 पे पड़ा है एंड j इज अभी यहाँ मेरा 3 पे. अब मैं क्या चेक करूंगी? पॉजिटिव नंबर है, अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, हमको राइट साइड पे 4 को ही रखना था, मतलब अपना राइट वाला जो पोर्शन है उसमें पॉजिटिव ही रहेगा. अब मैं j प्लस प्लस करती हूँ. नाउ अगेन एन एनकाउंटर अ नेगेटिव नंबर. व्हाट शुड आई डू? कि मुझे पता है कि मेरे को नेगेटिव नंबर अगर मैंने इनकाउंटर कर लिया और ये मेरा जो पार्ट है, इतना जो पोर्शन है ये नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका जो अगला जस्ट नेक्स्ट जो नंबर होगा, दैट इज दिस वन, ये क्या ही होगा? पॉजिटिव ही होगा. दैट मीन्स अगर मैं इन दो नंबर्स को स्वैप कर दूंगी तो ये अपनी करेक्ट पोजिशन पे है, इसको तो राइट हैंड साइड पे होना है, तो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, विल नॉट मेक अ डिफरेंस. तो ये 2 इधर आ जाएगा और मेरा -4 क्या चला जाएगा? इधर चला जाएगा. यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा -4. तो अगर मैं इस एरे में करेक्शन करूँ, सो योर -4 विल कम एंड योर 2 विल कम. तो मेरा जो नेक्स्ट डिविजन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा. मैं i प्लस प्लस करूँगी ना पहले, तो मेरा i यहाँ पर है एंड मेरा j इज हियर. तो अभी तक का मेरा ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइड, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइड. ओके, टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं एक बार इनको इरेज कर देती हूँ. ठीक है, तो मेरे पास अब मेरा i किधर है? मेरा i -4 इधर पड़ा है मेरा i. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड मेरा j था, प्लस प्लस होके इधर चला जाएगा. देख रहे हो ना मेरा एरे कैसे दिख रहा है? इधर -3 -4 आ गया, इधर 1, 4, 2 एंड -5 पड़े हैं. अब मैं -5 पे आती हूँ. ये मेरा अगेन नेगेटिव नंबर हो गया. तो विद द सेम कॉन्सेप्ट कि जो मेरा अभी तक का डिविजन था ना, उसके जस्ट नेक्स्ट पे पॉजिटिव नंबर ही पड़ा होगा, तो आई कैन स्वैप दैट पॉजिटिव नंबर विद दिस नेगेटिव नंबर. सो उससे क्या होगा कि मेरा नेगेटिव नंबर वाला जो बॉक्स है या जो पार्टीशन है वो बड़ा हो जाएगा, एंड 1 को मैं चाहे इधर रखूँ चाहे इधर रखूँ, डजंट मेक अ डिफरेंस नो, क्योंकि मेरा तो पॉजिटिव नंबर तो अभी भी इस लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे ही रहा. तो व्हेन आई स्वैप दिस, ये क्या बन जाएगा? -3, -4, -5, 4, 2 एंड 1. एंड मेरा डिविजन कुछ ऐसा दिखेगा क्योंकि मेरा i प्लस प्लस हुआ था पहले. ठीक है, मेरा j यहाँ था, अब j प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा? j की वैल्यू विल बिकम इक्वल टू n. दैट मीन्स कि हमारा लूप इधर एंड हो जाएगा. तो एट द एंड हमारा एरे जो है हमें कुछ ऐसा मिल गया, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड. हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स एंड में चले गए एंड सारे नेगेटिव नंबर्स हमारे बिगनिंग में आ गए. तो आई होप दिस अप्रोच इज अ बिट क्लियर. नाउ इसका कोडिंग पोर्शन देख लेते हैं कैसे होगा. और आई कैन
or we should directly code it, I guess. यहाँ मैं एक बार इधर बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मेरा आई कहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, आई विल स्टार्ट फ्रॉम मेरा -1, ठीक है। ये जो था ये कौन से नंबर्स के लिए, नेगेटिव नंबर्स का ट्रैक रखने के लिए। मेरा जे विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू कीप ट्रैक ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि मैंने ऐसे पार्टीशन किया था। मेरा जो वाइल लूप लगेगा वो किस पे लगेगा, जे पे, कि मैं सारे पॉजिटिव नंबर्स ट्रेवर्स कर रही हूँ और उसमें से मैं जो जो नेगेटिव मिल रहे हैं मैं उनको लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्टीशन में लेके जा रही हूँ, ठीक है। वाइल लूप मेरा किस पे लगेगा, जे पे, वाइल जे इज लेस देन एन। अब उसके अंदर क्या होगा, एवरी टाइम आई इनकाउंटर अ नंबर, कि अगर एरे आई मेरा नेगेटिव है, अगर मेरा कोई भी नंबर कोई भी एलिमेंट नेगेटिव है तो मैं क्या करूँगी, व्हाट विल आई डू, मैं पहले तो आई प्लस प्लस करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा साइज ऑफ द नेगेटिव साइड बढ़ गया। एंड देन आई विल स्वैप एरे ऑफ आई एंड व्हाट, एरे ऑफ जे। जैसे मैंने यहाँ किया था ना, इसको और इसको स्वैप कर दूंगी, आई पहले यहाँ गया फिर इसको और इसको मैंने स्वैप कर दिया, दैट इज एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे। एंड ऑब्वियसली जे प्लस प्लस तो हमेशा होगा ही, चाहे मेरा एरे ऑफ आई नेगेटिव हो चाहे मेरा पॉजिटिव हो, जे मेरा कॉन्टिन्यूसली आगे चलता रहेगा। सो हमारी इस अप्रोच की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ एन आई, एंड जो ऑर्डर ऑफ एन आई एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 हो गई, बिकॉज हमने दो ही तो वेरिएबल्स यूज किए हैं, दैट्स इट, we didn't use anything else and we used only a single loop. So let's see if we can code it down now. So it's a vector given here, nums dot size and I equals to -1, j equals to 0, ठीक है। So यहाँ पे we can write I is for negative numbers and j is for positive numbers. Alright, negative numbers के लिए अब मैं एक लूप लगाती हूँ, while j is less than n, and what will I do if nums of I is negative, if at all it's negative I'll do the swapping, मैं temp लेके swap कर लेती हूँ, nums of sorry, first of all I have to do I plus plus, ठीक है, nums of I and then I'll do nums of I is equals to nums of j and then nums of j is equal to temp and j plus plus तो मुझे every time करना है, and then I can finally return nums itself. So let's check if this is running fine, hopefully it is. Okay, this is showing wrong answer. Let's see if it did something wrong. If nums of I, we calculated the size I -1, j is 0 while j is less than n. If nums I, okay, sorry, yeah, correct. We are traversing ना, हम j को use कर रहे हैं करने के लिए, so we'll just go with इधर j डालना था, yeah, it's absolutely correct. So I hope you liked the video, and if at all you want to see any particular problem you can comment it down. Thank you for watching, thank you everyone, bye bye.